ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? अच्छे है। बस अच्छे। बहुत अच्छे दीदी। बहुत अच्छे अच्छे। बहुत अच्छे है। किस बेसिस पर हम अच्छे हैं या बहुत अच्छे ये डिसाइड होता है। चलो आज के सेशन की शुरुआत करें। रेडी हैं सभी? रेडी कौन कौन रेडी है? रेडी रेडी। रेडी रेडी। ओके। देखो स्क्रीन पर आपको एक बहुत अच्छा सा दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है इमेज? कौन माई सा इमेज? इमेजिनरी फ्रेंड। माय इमेजिनरी फ्रेंड। बटरफ्लाइज और फ्लावर्स। आप में से कौन कौन है जिसको बहुत फ्रेंड्स बनाने का शौक है? कौन है ऐसे बच्चे जिनको आपस में एक दूसरे से फ्रेंडशिप करने का बहुत शौक है? शौक? जी दीदी। कोई भी नहीं, बस एक ही नहीं कहा जी दीदी, मतलब बाकी सबको तो शौक ही नहीं है। मेरे को भी है। अच्छा है। तो अगर शौक है तो कैसे फ्रेंड्स बनाते हो? किसी भी नए व्यक्ति को आपको फ्रेंड बनाना है तो कैसे शुरुआत करते हो आप? अपने नाम बता के और नाम जान के किसी का। अच्छा, नाम बताने से। और कैसे फ्रेंडशिप की शुरुआत होती है? हेलो बोल के हेलो कहेंगे तो। और उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करते। अच्छा, अपनी कन्वर्सेशन हॉबीज करें, बताएंगे। हैबिट बताकर। और उनकी हेल्प करके। उनकी हेल्प करके। देखिए बहुत अच्छी बात है जो मैंने रिसेंटली एक जगह पढ़ी। कहते हैं फ्रेंड्स बनाए नहीं जाते, फ्रेंडशिप निभाई जाती है। तो चेक करो हमारे अंदर क्या वो क्वालिटी है कि हम उस फ्रेंडशिप को निभा सके। हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है। आज के सेशन में बहुत अच्छे से हम सीखेंगे कि मुझे किसी दूसरे से भी फ्रेंडशिप निभानी है तो पहले मुझे अपने आप से एक बहुत अच्छा एक फ्रेंड सर्कल आज हमको मिलने वाला है। और जब जितने पक्के हमारे ये इमेजिनरी फ्रेंड रहेंगे ना, उतना ही पक्की फ्रेंडशिप हमारी बाहर में सबके साथ रहेगी। सीखना चाहेंगे ऐसे इमेजिनरी फ्रेंड कौन है? सीखेंगे? यस दीदी। यस दीदी। एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। Oh, hey there. I'm Mr. Tibbs, an imaginary friend. Noah's imaginary friend. Oh, would you look at that? He's missing it. You're missing it! Mr. Tibbs? Oh, you just missed it. Missed what? Where are we? Oh, right. Where are my manners? Welcome, Noah, to the deep blue, where everything is possible and true. Big becomes small, and yellow looks a bit more like blue. Speaking of that, Hugh, I hear you got some tough news and feeling a bit sad. That is what a difficult diagnosis tends to do. I'm fine. Can I tell you a secret? A big one. It's all right. Feeling sad is all right. Here, let me show you what I mean. Here's the thing they don't tell you. Everyone gets sad, and I mean everyone, even me. You? Why would you get sad? It's simply a part of life. You can't have happiness without some sadness. The line between them feels paper thin. And you don't always know what made the sadness begin. But I only like being happy. Of course, no one likes being sad, especially Francis. What? What about me? I'm fine. I'm really, really fine. Whoa! We all know what that feels like.
Once you acknowledge the sadness and ride it through, you'll be amazed how much easier it is to put yourself back together. Are you okay? I feel great. Really great. I haven't felt this alive in years. I'm gonna go write that novel I've been putting off. Bye. He writes? It's his way to express himself, to share his feelings. Hiding your emotions, pretending everything's all right, makes you feel lonely and in the dark. Expressing yourself will light you up. How did you do that? Oh. Hello? Hi. Hey. Hello. Hey. Hi. Hey. Hi. Hey. Hello. Hello! I wanted to tell you that I felt a little sad today. Did you see that? So, what's next? That was our last stop, kiddo. It's the end of our tour for today. Already? Ta-da! It's finished. It's pretty easy, with 8 fins. Now it's time for you to go back home and put these lessons into action. But we're all here for you the next time you feel a little blue. You know what, Mr. Tibbs? I think I'll be alright. Everyone gets a little sad sometimes. Yes indeed. They sure do. Goodbye, Mr. Tibbs. Goodbye now, Noah. Bye. Bye, Noah. Was a good kid. Oh, and goodbye to you too. Bye. समझ में आई इस वीडियो से? एक उदास बच्चे को एक फिश ने हैप्पी कर दिया। अच्छा, और उसके जीवन इतने जो उसने बहुत अच्छी ब्यूटीफुल जर्नी पास की, उस जर्नी में क्या क्या देखा उसने? मुझे बहुत अच्छा लगा। जो उसने पास क्या क्या किया, किस किस चीजों को पास किया, किस किस से मुलाकात हुई उसकी? उस बच्चे ने अच्छा वेल और जेलीफिश से जेलीफिश से और ओम शांति दीदी। ओम शांति। और किसको मुलाकात हुई उससे? फिश। देखो, इसने जो इतनी अच्छी हम लोग ने एक वीडियो देखा, ये हमारी बहुत अच्छी इमेजिनरी फ्रेंड की जर्नी की शुरुआत है। सबसे पहले देखो वो बच्चा मिलता है एक वाटर बबल से। देखा हमने उसको, उस बड़े से वेल ने एक बबल में कैद कर लिया और बबल फिर फूट जाता है। देखा? मैजिक वाटर बबल स्मॉल become big and big turn small। तो वो जो वाटर बबल है ना, वो बिल्कुल मैजिकल वाटर बबल है। पता है ये वाटर बबल किसको कहते हैं? किसको पता है बबल किसे कहते हैं? बबल नहीं पता? पता है। अच्छा, किसको कहते हैं? बुलबुला पानी का। देखो, आप कभी हाथ में सोप लेकर के उसको ऐसे क्रश करोगे और फिर देखोगे तो हाथ में बबल्स आ जाते हैं। सेम बबल जो होते हैं वो कितने देर तक टिकते हैं? ज्यादा देर तक की नहीं, जब हम हाथ धो लेंगे तो वो हट जाएगा। हट जाता है। सेम ये जो वाटर बबल है ये इंडिकेट करते हैं हमारे थॉट्स को। सबसे पहला हमारा इमेजिनरी फ्रेंड हमारा खुद का थॉट, हमारी खुद के विचार। कैसे कई बार कोई भी सिचुएशन आती, थोड़ी सी भी बात आती, कहे हम अपने आप से इतना ज्यादा नेगेटिव थॉट करने लग जाते, नहीं ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा। सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपने थॉट को तो ठीक करके रखें। बाहर सिचुएशन कुछ भी हो, मैं खुद ही खुद को तो प्यार करना सीखूं। राइट है? कुछ भी सिचुएशन है, समझो किसी फ्रेंड ने हमको आज अच्छे से मेरे साथ उसने बातचीत नहीं की, अब मे भी उसका कोई प्रॉब्लम रहा होगा, मे भी वो बहुत हड़बड़ी में रहा होगा, लेकिन हम क्या सोचने लग जाते हैं? ऐसे टाइम में क्या सोच चलेगा आपका? कि हमारी गलती होगी या तो फिर हमने कुछ बोल दिया होगा जिसके कारण वो हमसे बात नहीं कर रहा है।
या कुछ और भी हमारे रीजन हुआ होगा। डेफिनेटली सबसे पहले यही थॉट आएगा कि शायद मेरी गलती है, लेकिन कुछ भी नेगेटिव थॉट आता है तो हमको उसको रखना नहीं है। बबल्स हमारे ही थॉट है, हम चाहे तो उसको अच्छा भी बना सकते हैं, हम चाहे तो उसको फिर बुरा भी बना सकते हैं। जितनी जल्दी एक बबल टूट जाता है उतनी ही जल्दी मुझे अपने मन से इस नेगेटिव थॉट को हटाना है। ओके, हो सकता है मे बी उसको कोई काम हो, या हो सकता है आज वो किसी दूसरे मूड में हो, कुछ भी कारण हो सकता है। हमको कभी भी अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, हमेशा अपने लिए अच्छा ही सोचना है। जितना हम अपने आप के लिए अच्छा बताया था उतना ही तो दूसरों के लिए अच्छा सोच पाएंगे ना। क्लियर है? पक्का? हाँ जी। Yes. सभी पक्का करते हैं कि आज से अपने लिए तो कम से कम अच्छा सोचेंगे ही। हाँ जी। Yes. जी। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमने फिश देखा था, Yes. फिश देखा था ना, Yes. कितने सारे फिश थे वहां पर। जी देखो मैम देखा था। फिश है ना, तो देखो ये पिंक फिश कैसे उसके पूरे चारों तरफ घूम जाते हैं। ब्यूटीफुल फिश। पिंक फिश थे, और कुछ समय बाद कभी तो पिंक फिश पर्पल में भी हो जाते और कभी पिंक भी हो जाते। तो ये फिश क्या है? हमारे अंदर की उम्मीद। सेकंड इमेजिनरी फ्रेंड है हमारी उम्मीद। किसी भी सिचुएशन में हमें अपनी उम्मीद को नहीं खोना है। एक छोटी सी आपको प्रैक्टिकल इंसिडेंट मैं आपको बताऊं। एक बार एक छोटा सा बच्चा रहता है, करीबन 8-10 साल का होगा, एंड डेली जब भी वो स्कूल जाता था उसके पापा उसको बाय कार स्कूल छोड़ने के लिए जाते थे, और जैसे ही स्कूल पर वो उतरता था तो उतरने से पहले अपने पापा को बहुत अच्छे से प्यार से गले लगाता था, और उसके पापा कहते थे कि बेटा आप इंतज़ार करना, जैसे ही शाम होगा ना मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। तो बच्चा बड़े विश्वास के साथ कहता था कि पापा मुझे पता है शाम होते ही आप मुझे लेने के लिए जरूर आओगे। तो उसके बाद फिर वो बच्चा उतर जाता। डेली का यह नियम था, डेली पापा और बच्चे के बीच में ये दोनों बातचीत होती थी। एक दिन ऐसा ही बाकी दिन की तरह नॉर्मल डे था। जैसे बच्चा स्कूल पहुंचा, स्कूल पहुंचते वो कहता है, उसके पिता कहते कि बेटा शाम होते मैं लेने आ जाऊंगा, आप इंतजार करना। तो बच्चा कहता पापा मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर जरूर आओगे मुझे लेने, और मैं आपका जरूर इंतजार करूंगा। ये कह करके बच्चा उतरता है और उतर करके अपने स्कूल में चला जाता है। इधर 15 मिनट की दूरी पर इसके पिता का भी ऑफिस था, पिता भी चले जाते अपने ऑफिस पर बैठकर। करीबन आधी दोपहर बीती हुई रहती है, 1-2 बजे की बात रहती है। अचानक से पिता को ऐसा लगता है जैसे उनका लैपटॉप हिल रहा है, उनकी फाइलें हिलने लग गई हैं। उनको समझ नहीं आता कि हर चीज़ अपने आप क्यों हिल रही है। जब तक ये कुछ समझते इतने में ही उस ऑफिस की वार्निंग बेल बज जाती है कि भूकंप की तेज झटके आ रहे हैं, तो सभी जल्दी से अपने इस जी, there is one minute. तो फिर जल्दी से जल्दी सारे के सारे लोग जो रहते हैं वो फिर बाहर निकल जाते हैं। वो लोग बाहर निकलते और निकलने के थोड़े समय बाद ही इतनी अच्छी पावरफुल बिल्डिंग तो सबको बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये बिल्डिंग तो इतनी अच्छी थी, फिर भी ये इस तरीके से गिर गई। इसकी नींव काफी पावरफुल थी। जब गिरी हुई बिल्डिंग को देखते तो अचानक इसके पिता को याद आता है कि थोड़ी दूर पर बच्चे का स्कूल है, पता नहीं बच्चा मेरा सेफ है नहीं है। तुरंत दौड़ते दौड़ते अपने बच्चे के स्कूल के पास आते हैं। जैसे स्कूल के पास आते तो देखते काफी सारे स्कूल के बच्चे हैं, सब बाहर रोड पर खड़े हुए रहते हैं। तो उन बच्चों के बीच जा करके वो बहुत आवाज लगाते, अपने बेटे का नाम ले लेकर बहुत पुकारते कि तुम कहाँ हो कहाँ हो, लेकिन आखिरकार वो बच्चा उनको दिखाई देता ही नहीं। तो उन्होंने टीचर से पूछा कि क्या सारे बच्चे निकल गए थे। तो टीचर ने कहा मेजॉरिटी बच्चे तो निकल ही गए थे, लेकिन हम कह नहीं सकते अगर कोई बच्चे किसी कारण से अंदर रह गए होंगे। बहुत ढूंढता अपने बच्चे को, लेकिन इतने सारे बच्चों के बीच उनका बच्चा उनको नजर नहीं आता। तो ये देखकर उनको काफी निराशा होती कि बच्चा है कहाँ। तो वो तुरंत स्कूल का मैप मंगवाते हैं और उस जगह पर को ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ उनके बच्चे की क्लास होनी चाहिए थी।
तो देखते हैं कि मैप के अनुसार उस जगह पर सबसे बड़ा मिट्टी का ढेर लगा रहता है, मलबे का बिल्कुल सबसे बड़ा ढेर। तो वो जाते हैं और जा कर के तुरंत उस मलबे के ढेर को हटाना शुरू कर देते हैं। तो बाकी लोग मना करते हैं भाई इतना मलबे का ढेर में अगर बच्चा मिल भी गया तो कौन सा वो जीवित होगा। तो ये कहते भले जीवित हो या ना हो, मुझे तो अपना बच्चा किसी भी कीमत पर चाहिए ही चाहिए। 3 दिन 3 रात तक कंटिन्यू बिना रुके नॉन स्टॉप वो उस मलबे के ढेर को हटाते जाते हैं। एंड 3 दिन के बाद इतना छोटा सा होल आता है और छोटे से होल में जैसा ही वो नीचे देखते हैं तो नीचे से आवाज आती है, पापा ये आप हो ना। जैसे वो ये आवाज सुनते हैं उनकी तो आंखों से आंसू आने लग जाता है। बाकी लोगों को भी पता चलता है कि अंदर अभी भी बच्चे हैं, तो बाकी लोग भी उनकी मदद करने लग जाते। तो उनके पिता पूछते हैं कि अंदर आप लोग कितने लोग हो। तो वो बच्चा कहता है कि पापा हम ना टोटल यहाँ पर 13 लोग हैं, जिसमें से अभी 3 तो ऐसे भी भूख के कारण बेहोश हो गए और बाकी सबको भी बहुत भूख लग रही है, सब बहुत रो रहे हैं। तो उसके पिता ने पूछा आप ठीक हो। तो बच्चा कहता है कि पापा मैं सबको यही विश्वास दिला रहा हूँ कि अभी शाम नहीं हुई होगी, अगर शाम हुई होती तो पापा तो आए होते ना मुझे लेने के लिए। मैं कब से इनको यही बोल रहा हूँ पापा कि शाम होने का इंतजार करो, पर देखो ना शाम हुई और आप आ गए। फिर सब के सब मिलकर उस मलबे के ढेर को हटाते हैं और बच्चों को बाहर निकाला जाता है। हुआ क्या था, मलबे के ढेर में उनकी क्लास एज इट इज नीचे की तरफ दब गई थी, कुछ ऐसा नुकसान वहां नहीं हुआ था। तो सबको बड़ा आश्चर्य लगा कि बच्चे सेफ हैं। तो देखो ये है एक उम्मीद थी ना उस बच्चे को। पहले हमको चाहिए कि हमें उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी है। ये फिश जो है ये उम्मीद की निशानी है। आज देखो मछली पानी में भी रहते हुए, चलो एक जनरल नॉलेज की क्वेश्चन पूछते हैं, पानी में रहते हुए मछली सांस कैसे लेती है पता है? गिल्स की मदद से। अरे वाह, गिल्स की मदद बहुत से। अच्छे टैलेंटेड बच्चे हो। उनके पास गिल्स होते हैं। मदद से वो गिल्स से जैसे सांस हम, लेते। वेरी गुड आरव। आप हाथ उठा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है? हाँ पूछो। मैम अगर जब वो बच्चा अंदर था तब वो खुद हम्म, को नहीं निकाल सकता था वो पत्थरों को लेकर। वो तो इतना नीचे था, नीचे से उसको थोड़ी समझ आ रहा ऊपर कितना पत्थर है, और नीचे तो फिर बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया था ना। तो और पूरा उसके स्कूल अंदर उसके ऊपर गिर गया था क्या? तो इतनी पावर भी नहीं थी कि वो खुद हटा सके। आप होते तो आप कर पाते क्या? नहीं। तो आप ही की उम्र का तो बच्चा था, वो भी आपके जैसे बिल्कुल छोटा सा क्यूट सा। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले हमको चाहिए कि हम अपने अंदर की उम्मीद को कभी नहीं खोएं। ये फिश है ना, ये फिश उम्मीद की निशानी है। यही फिश पिंक फिश मतलब हमारे अंदर एक पॉजिटिव उम्मीद है। वही पर्पल हो जाती है मतलब कई बार हम अपने आप की उम्मीद से भी हार मान जाते, खुद के ऊपर डाउट हो जाता, पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। या कई बार हमारे अंदर दूसरों बच्चों को देखकर कंपैरिजन की फीलिंग आ जाती है, अरे वो तो क्लास टेस्ट में हमेशा टॉप करता है तो वो इस बार भी टॉप करेगा, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है तो इस बार भी मैं हार जाऊंगा। दूसरों को देख करके हमारे अंदर ये जो कंपटीशन की फीलिंग आ जाती है ना कि वो मेरे से बेहतर है, या खुद के अंदर हीन भावना आ जाती है, ये सब हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमारा सेकंड इमेजिनरी फ्रेंड उम्मीद है। क्लियर है? यस दीदी। किस किस को बात समझ में आई? पुलकित क्लियर है? आनंद? देखो उम्मीद किसी भी सिचुएशन में हमको नहीं खोनी है, चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो जाए, क्योंकि एक सिक्का होता है, सिक्का का दोनों पहलू देखा है, एक होता है हेड, दूसरा होता है टेल। तो जरूरी नहीं कि इस बार हेड आए तो हर बार हेड ही आएगा, कभी हमको टेल का भी सामना करना पड़े। लेकिन वैल्यू तो सिक्के की वही रहेगी ना, चाहे वो हेड की तरफ आए या टेल की तरफ। सेम सिचुएशन कितनी भी खराब आए, लेकिन हम क्या हैं ये हम अपने आप को डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ हाँ दीदी। हाँ दीदी। तीसरा
तीसरा आपने देखा था, एक बहुत बड़ी जो मछली थी ना, ब्लू कलर की स्क्वायर शेप की, वो बुक लेकर के आई हुई थी। जी दीदी। किस किस को बुक्स पढ़ना पसंद है? मुझे अच्छा, बुक्स में कौन सी बुक्स पढ़ना पसंद है आनंद? नॉवेल्स, अच्छा, नॉवेल्स। और कौन सी बुक्स पढ़ना पसंद है? स्टोरी बुक्स, स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है। क्या सिखाती है स्टोरीज हमको? कुछ मॉरल। हम पंचतंत्र। अच्छा, तो क्या सिखाती है पंचतंत्र हमें? क्या सिखाती है? कुछ मॉरल। मॉरल सिखाती। जब हम छोटे छोटे रहते थे ना, हमको भी कोई बात बतानी हो, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज भी कितनी सारी चीजें सिखाती है। आज आप देखो, अगर कोई भी व्यक्ति के पास बुक्स है ना, तो कभी भी वो अकेला नहीं रह सकता। बुक्स के लिए कहते हैं वो हमको बैठे बैठे, एक जगह बैठे भी दूसरी जगह की वो जर्नी हमको करवा दे। आपको ऐसा फील होता है? इतने कभी आप गहरे खोए हो कि कोई बुक में इतने डूब गए कि सामने क्या हो रहा कुछ पता ही नहीं चले? यस होता है कभी ऐसा? यस मैम। सेम, बुक्स हमारी सबसे अच्छी फ्रेंड है। हमको बुक्स पढ़ने का भी शौक होना चाहिए। भले अभी आप लोग छोटे छोटे हो, तो छोटे में अच्छी बुक्स पढ़ने की आदत होनी चाहिए। जैसे हमारे हिस्टोरिकल बुक्स, हम इंडिया के हिस्ट्री के बारे में पढ़ें, या फिर आप लोग पंचतंत्र भी पढ़ते, उसमें भी एक, आप सोचो देखो, जानवरों को लेकर के कितनी अच्छी उनकी वो लोग कहानी क्रिएट कर लेते हैं। एक सीख हमको कितनी प्रेरणा भरी मिलती है। कई बार हो सकता है कि हमारे आसपास देखो कोई ऐसा है नहीं जो हमको टीचिंग्स दे, लेकिन अगर हम बुक्स में खोजें ना, तो अगर मन में कोई डाउट है, कोई बात हो, तो अगर अच्छे से पढ़े तो बुक्स भी तो हमको क्लियर कर सकती है। यस मैम। तो कोशिश करना चाहिए कि डिजिटल वर्ड से हटकर थोड़े समय हम बुक्स के लिए दें। जनरली आज के समय में क्या होता है, थोड़ा भी फ्री हुए हाथ में मोबाइल ले लेते, होता है ऐसा। पर मोबाइल से भी कहीं ज्यादा बेहतर हम देखें तो बुक्स है। चलो, बुक्स पढ़ने के फायदे बताओ आप सभी। मैम, बुक्स पढ़ने के फायदे ये है कि हम लोग को नॉलेज मिल सकती है, और हम लोग रीडिंग नॉलेज मिल सकती है, हम लोग को सीख भी मिलती है उस बुक से। और मैम, हम लोग को समझ भी सकते हैं। और स्टोरी बुक से हम लोग को कुछ सीख मिलती है, स्टोरी बुक से सीख मिलती है कि ऐसा मत करना, वो सब। अच्छा, और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या होती है बुक्स पढ़ने की? रीडिंग नॉलेज। कभी बोर नहीं होते, हम कभी बोर नहीं होते। बोर नहीं। हमें हमेशा इंटरेस्ट रहता है आगे का पढ़ने का, आगे पेज क्या होगा, अगर इस पेज में ऐसा है तो आगे कौन से पेज में इतना अच्छा होगा। अच्छा चंद्रकांत, आप बताओ, आप बुक्स पढ़ने के क्या फायदे होते हैं? बुक्स पढ़ने के हम लोग, हमारी रीडिंग अच्छी हो जाती है, रीडिंग स्किल अच्छी होती है, इंग्लिश पढ़ना भी आता है। बहुत सारे हमको नए नए शब्द मिल जाते हैं। आप ही लोग ने इतने सारे देखो बेनिफिट्स बता दिए, तो अब आगे से पक्का करेंगे। एक छोटी सी आदत हम अपने अंदर डेवलप करेंगे, रोज एटलीस्ट हमें 2 पेजेस बुक्स पढ़ के ही सोना है, ठीक है? राजी है सभी? कम से कम 2 पन्ना, लेकिन कोई अच्छी बुक होनी चाहिए, ठीक है? कोई भी अच्छी बुक के कम से कम 2 पेज पढ़कर ही आपको सोना है। डिजिटल वर्ल्ड से हटकर थोड़े समय के लिए प्रैक्टिकल दुनिया में आकर के, जैसे पुराने समय में देखो मोबाइल वगैरह तो इतने नहीं होते थे, लेकिन तब के समय में लोगों में जो नॉलेज होती थी, आज के समय में वो कहाँ है? क्योंकि उनके अंदर वो जो बुक्स की नॉलेज थी ना, वो हमको बहुत आगे बढ़ाती। हमारे वर्ड्स, मोबाइल में तो इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स हमको नहीं मिलेंगे, हमारे रीडिंग स्किल अच्छी होगी, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा दूसरों के सामने अपनी बातों को प्रेजेंट करने का, क्योंकि खुद के अंदर नॉलेज रहेगी तब तो हम दूसरों को प्रेजेंट कर सकेंगे। ओके, सेकंड फ्रेंड्स हमारे कौन बने आज? बुक्स भी हमारे फ्रेंड हैं। बुक्स। ऑलराइट, आगे बढ़े। हाँ, ये क्या है? यस मैम। जेलीफिश देखा हमने? देखो उस वीडियो में दिखाया हुआ था, बिल्कुल पूरा अंधेरा है
और अंधेरे में जब वो बच्चा जाता है, एक जेलीफिश को उसने हेलो कहा तो एक लाइट जली, दूसरे को कहा तो दूसरी लाइट जली, तीसरे को कहा तीसरी लाइट जली। लेकिन जब उसने तेज से हेलो कहा तो क्या हुआ? तेज से हेलो कहा तो सबकी लाइट जल जाती है। तो पता है ये जेलीफिश कौन है? ये जेलीफिश, ये बिल्कुल डार्क आउट, ये हम अपने अंतर में जाते हैं। मैं खुद अपने अंदर की आत्मिक शक्ति को जगाना। मुझे याद है जब हम बिल्कुल छोटे छोटे हुआ करते थे, रात को सोने से पहले हमको ना मम्मा बेड पे लेटते ही नींद तो आ नहीं जाती, तो मम्मा हमसे पूछती थी, जैसे दिन भर में हमने आज समझो चोरी की, तो मम्मा पूछती थी कि बताओ आपने आज चोरी की, क्या आपकी अंतरात्मा आपको गवाही दे रही कि आपने अच्छा किया है? तो उस समय आप खुद से हम पूछते तो कहते थे कि नहीं ये गलत आदत हमको नहीं करना चाहिए। इट मीन्स हम उसको एक इजी लैंग्वेज में गए तो ये होता सेल्फ रियलाइजेशन। अपनी आंतरिक शक्तियों को खुद के ही हम अपने अंदर से जगाएं। कई बार हमसे कोई गलती होती है या समझो हमने कोई डिमांड की, वो डिमांड पूरी नहीं होती, हम मूड ऑफ करके बैठ जाते हैं, तो हम ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कोई दूसरा आए आकर के हमको समझाए। लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी समस्या का समाधान किसी दूसरे के समझाने में तो बिल्कुल भी नहीं होता। आप किसी शांति वाले स्थान पर बैठो और खुद ही अपने आप से बातचीत करो। जितना गहरा हम अपने अंदर में जाते जाएंगे ना, उतने ज्यादा हमको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम तो कहीं बाहर है नहीं, प्रॉब्लम है मेरे मन की सोच में। तो सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा सॉल्यूशन? मेरे ही अंदर। मेरे ही अंदर है, डिस्कवर तो मुझे ही करना है ना। तो हमें सबसे पहले चाहिए कि अपने अंदर के मन, बुद्धि, संस्कार तीनों के बीच में एकता लानी होगी। और एकता आएगी कैसे? कैसे आएगी? जब हम अपने अंदर जाएंगे गहराई। अच्छा, और अपने अंदर कैसे जाएंगे? अपने आप से बात करके। पुलकित आप बताओ, अभी समर कैंप अटेंड किया ना, क्या सीखा उसमें हमने? जी दीदी, समर कैंप में क्या सीखा अभी? दीदी पेंटिंग, ड्राइंग, क्या हमें बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा सोच के बोलना चाहिए चीजें। अच्छा, और वैल्यू ऑफ टाइम। अच्छा, और क्या क्या सीखा समर कैंप में? मेडिटेशन। मेडिटेशन। तो अपने अंदर की अपने अंदर की इनर पावर को जनरेट करना है, तो सबसे पहले चाहिए हमें मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स सबसे पहला खुद को रियलाइज करना। एक बहुत अच्छा सॉन्ग था जो हम समर कैंप में बहुत अच्छे से गाते थे। शुरुआत में ही देखो एक्सरसाइज करते थे ना हम सभी, कौन सा गाना था याद है? कौन सा गाना था? हम एक्सरसाइज में शुरुआत में लेते थे ऐसे ट्विंकल ट्विंकल, आगे लिखता है आई एम द ड्राइवर एंड माय बॉडी इज द कार। हाउ स्वीट, आप लोग की मेमोरी तो बहुत ही अच्छी है। तो आई एम द ड्राइवर एंड बॉडी इज माई कार। तीसरी लाइन क्या थी? तीसरी लाइन, Hair in my forehead that shines bright. हेयर एंड माई फॉरहेड शाइनिंग ब्राइट। क्या शाइन होता है? दीदी सोल। Soul. स्टार। स्टार इज माई सोल, जो यहाँ इन सेंटर ऑफ फॉरहेड चमकता है। प्रेरणा समर कैंप में हमने सीखा था ना। तो जितना हम अपने आप को सोल रियलाइजेशन करते जाएंगे ना, अपने आप को ऐसे सोल समझेंगे, तो हमारे अंदर ये जो सारी क्वालिटीज है, ये क्वालिटीज अपने अंदर आती जाएंगी। नॉलेज, ज्ञान है, पवित्रता है, प्रेम है, ये सारा हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। कोई भी सिचुएशन आई, हम सोचे कोई दूसरा करे, कोई दूसरा मुझे प्रेम दे, शांति दे, नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते, देखो आप गेम्स आप बहुत अच्छे से भी देखो, गर्मी की छुट्टियों में कई बार हम बाहर खेलने के लिए जाते हैं, आपको पानी चाहिए लेकिन आपके फ्रेंड के पास भी पानी नहीं है,
उसकी भी बोतल खाली है, वो आपको पानी दे पाएगा क्या? दे पाएगा? क्यों नहीं दे पाएगा? दीदी क्योंकि जो हमें चाहिए वो उसके पास भी नहीं है। उसके पास भी नहीं है। और सपोज आपकी बोतल भरी हुई है तो आप उसको दे सकते हो? हाँ दीदी। दे सकते हैं। सेम हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि दूसरे मेरे साथ बहुत अच्छे से बातचीत करे, दूसरे मुझे सुख दे, लेकिन इंटरनली कहीं ना कहीं हम भी तो वो भी तो खाली हैं। अब जब खुद खाली है वो दूसरों को कैसे फील करेगा? हम सोचते हैं वो मेरे से प्यार से तो बात बोलना चाहिए, मैं जब भी बोलूं तो मुझे प्यार से सुनना चाहिए, पर इंटरनली वो भी तो खाली है। तो इट्स माय ड्यूटी। आप सब तो देखो कितने अच्छे प्रेरणा समर कैंप के किड्स हो, इतना अच्छा 15 डेज तक हम लोगों ने बहुत अच्छा कैंप अटेंड किया। तो 15 डेज में हमारे अंदर तो कितनी पावर आ गई है ना, किया ना हम लोग ने मेडिटेशन या 15 डेज कितने अच्छे से। यस दीदी। तो इस पावर को अब हमको स्टॉप नहीं करना, पावर को और बढ़ाना है। और हमारे अंदर इतनी पावर भरनी चाहिए कि हम अपने से दूसरों को वो हम ट्रांसफर कर सकें। इज इट क्लियर? कर सकते हैं हम सभी ऐसा? कर सकते हैं? यस दीदी। पक्का? टेस्ट करो आपके में। सपोज आपका कोई फ्रेंड है, आपके सामने बहुत गुस्से में लड़ते झगड़ते आ रहा है, आप उसके साथ प्यार से बात करने की कोशिश करें तो भी वो बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहा है, क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में? दीदी प्यार से उसको समझाने की कोशिश, मैम उसको रिलैक्स करवाएंगे, पानी पिलाएंगे। कर सकते हो ऐसा? जब वो बहुत देर के बाद शांत हो जाए फिर हम उसे समझाएंगे। कर सकते हैं ऐसा पक्का? या आप भी उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगे? नहीं। पक्का है ये चीज? तो चलो, सबसे पहले हमको चाहिए कि हम पहले खुद तो काम रहें, शांत रहें, एंड देन हम फिर उस बच्चे को भी ऐसी हम ट्रेनिंग दे, हम उसके साथ बातचीत करके उसके मन में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉल्व करें। मेडिटेशन हमको यही सिखाता है। खुद को इतना चार्ज करो कि आपकी चार्जिंग से दूसरे तक वो एनर्जी पास हो। इज इट क्लियर है? तो अपने अंदर जाकर के हमको इस शक्तियों को वापस से जगाना है। मुझे याद है अभी समर कैंप में आप सब कुछ बच्चे थे, आप लोग को यहाँ से कमेंट्री भेजी जाती थी तो आप लोग उसका वीडियो भेजते थे, याद है? हाँ। कौन कौन बच्चे सब भेजते थे वीडियो अपना? मैं सुनीता ने भेजा था, ओझल ने भेजा था। हाउ स्वीट। तो अभी भी मेडिटेशन करते हैं या बस थोड़े समय के लिए था? यस। अभी भी करते हैं? कौन बच्चे जो अभी भी मेडिटेशन करते हैं वो बताओ मुझे। ओझल करती है, और कौन करता है? मैं भी करती। अच्छा, आनंद भी करता है। और कौन कौन मेडिटेशन करते हैं? मैं भी करती हूँ। कितने देर के लिए करते हैं मेडिटेशन? 10 मिनट्स, 20 मिनट्स। वेरी गुड। तो हमको 5 मिनट्स। तो हमको इस मेडिटेशन को कंटिन्यू करके रखना है। ओके? तो हमारी अच्छी इमेजिनरी फ्रेंड है मेडिटेशन। फिर आगे बढ़ो। ये कौन है? कौन आ रहा है स्क्रीन पर? ब्लू वेल। ये ब्लू वेल ही था ना जिसको उसकी पूरी बहुत अच्छे से सारा वो जर्नी पर उसको लेकर के गया था। ये ब्लू वेल पता है कौन है? हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड शिव बाबा। ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग स्टार में हमने सीखा था ना कि आई एम सोल एंड माय फादर इज सुप्रीम लाइट। तो जिससे मैं लाइट हूँ ना, बिल्कुल चमकता हुआ सितारा, सेम मेरा पिता जो परमात्मा वो भी ट्विंकलिंग स्टार है, सुप्रीम लाइट है। एंड ये ब्लू वेल मेरा प्यारा दोस्त, खुदा दोस्त है। तो अपने आप को ऐसा ट्विंकलिंग लाइट समझ करके उस खुदा दोस्त से जुड़ना, दैट इज कॉल्ड एज मेडिटेशन। क्लियर है? एक बहुत अच्छी लाइन यहाँ स्क्रीन पर लिखी हुई है, कौन मुझे पढ़कर सुनाएगा? Meditation is like a fire.
It will not burn you, but it will burn Meditation everything is which like is a not fire. you. It will not burn. You built it. Will burn. Everything which is not you. मेडिटेशन को एक अग्नि की तरह माना जाता है, आग माना जाता है। आग में देखो आप कोई भी चीज डालो तो वो वापस आपको मिलेगी क्या? नहीं दीदी, नहीं मिलता, नहीं। सारा जल जाता है। हाँ। तो मेडिटेशन भी एक आग की तरह है, लेकिन ये आग ऐसी आग नहीं है जो हर चीज को जला दे। ये आग वो जला देता है जो हमारा नहीं है। हमारा नहीं है माना इंटरनली हमारे अंदर देखो लालच है, किसी को देखकर कंपटीशन की फीलिंग आना, हीन भावना है, ये सब आपको अच्छी फीलिंग देता है क्या? आप लोग को दुखी होना अच्छा लगता है या सुखी रहना अच्छा लगता है? सुखी रहना। सुखी रहना है ना? तो ये जो दुख की फीलिंग आती है या फिर कुछ भी गलत आदतें हमारे अंदर है, मेडिटेशन वो सारी चीज को हमको ठीक कर देता है। ओके, तो मेडिटेशन मीन्स एज अ सोल मैं भी लाइट एंड मेरा परमात्मा जो पिता है वो भी लाइट, एंड फील करना है कि उनकी लाइट मुझ आत्मा में भरपूर होती जा रही है। क्लियर है? जैसे टॉर्च की लाइट होती है ना, सेम ऐसे ही मुझ आत्मा की भी लाइट बिल्कुल पावरफुल होती जा रही है। दैट्स कॉल्ड मेडिटेशन। हम प्यार से उसको कहते हैं शिव बाबा। बाबा क्यों कहते? क्योंकि बाबा कहने से बहुत समीप का संबंध फील होता है, बहुत अपनेपन की फीलिंग आती है। ठीक है, तो आज के सेशन में कौन कौन आपको इमेजिनरी फ्रेंड मिले? बुक्स मिले और बबल, मेडिटेशन मिले और ब्लू हाँ, व्हेल, और कौन कौन फ्रेंड मिले? शिव बाबा। जेलीफिश, शिव बाबा मिला और जेलीफिश माना क्या? जेलीफिश मीन्स अपने आंतरिक शक्तियों को जगाना। और सबसे पहले कौन मिला था? बबल, बबल्स मीन्स पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना। नेगेटिव थॉट उतनी ही जल्दी मन से चले जाने चाहिए जितनी जल्दी कि एक बबल टूट जाता है। एक हल्का सा टच चाहिए एंड वो बबल टूट जाएगा। सेम ऐसे अपने अंदर भी मुझे वो पॉजिटिव थॉट लाना है ना। ऑलराइट, एंड फिश ने हमको क्या सिखाया था? फिश इट मीन्स उम्मीद कभी भी हमको नहीं खोनी चाहिए। ओके, यस। उम्मीद हमारी बरकरार रहनी चाहिए। क्लियर है? एंड जब हम मेडिटेशन के थ्रू अपने अंदर ये सारी जो इमेजिनरी फ्रेंड हमने आज सीखे हमारे अंदर होप लेकर आएंगे, हम हमारे बहुत अच्छे बुक्स को अपने फ्रेंड्स बना करके रखेंगे, हम मेडिटेशन से अपने इनर पावर को जगाएंगे, तो पता है हमारा पूरा दिन कैसा हो जाएगा? बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा। तो देखो हमको भी इतना ही सुंदर सा दिन बनाना है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।